Assalamualaikum all. We are back with the discussion of the remaining part of chapter number 4 of the subject of marketing. We were discussing managing marketing information to gain customer insight. Okay, whatsoever we have discussed now, we will just make a conclusion or we can say something of that जो हमने अभी तक पढ़ा है फिर उसके बाद we will link it के जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं So we started this book with this model. Basically, marketing covers two aspects. One is creating value for customers, and the other one is capturing value from customers in return. So we were discussing actually creating value from for customers, how we can create value for the customers. So the first step is understanding marketplace and customer needs. Up till now, actually, we are focusing on that. How can we actually create value for the customers? Chapter number 1 focused on overall picture of this model. Then in chapter number 2, we discussed how can we actually create value for the customers. For that, we should know the customers at the first instance. Like we started discussion, or we can say that chapter 2 focused on whole of this diagram. It focused on customer value and relationship. Then how can we actually do that? By segmenting customers or market, then target the market, then differentiate, and ultimately position ourselves and our brand. After that, we had the marketing mix for the customers, product, price, place, promotion. That is being followed by the market analysis, market planning, market implementation, and market control. And all these aspects basically work in the external environment because we have to deal customers outside the organization. That is part of external environment. So we focused on that. After that, chapter number 3, we discussed that marketing efforts, how those work. ये हमारा marketing management process है. It starts with analysis, followed by planning, implementation, and organization, and ultimately control. So for analysis, we have to actually analyze the environment, external environment and internal environment. But how can we analyze external and internal environment? For that purpose, actually, we have to conduct research, or we have to go collect information. So this chapter basically focused on all these things. Chapter 1, 2, 3 के जो contents हैं उनमें हमारा सारा focus customer को जानने पे है, customer की needs and wants को जानने पे है. तो हम किस तरह वो जान सकते हैं, उसके लिए हम marketing information जो है उसके sources क्या हैं, कैसे collect करेंगे, क्या उसको करेंगे information को, कैसे utilize करेंगे, वो सारा इस चैप्टर का फोकस है. तो वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन. ये जो आपको प्लम कलर या मैरून कलर में नजर आ रही है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर इनसाइट. सेकंड, असेसिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स, मार्केटिंग रिसर्च, एनालाइजिंग एंड यूजिंग मार्केटिंग एंड अदर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कंसिडरेशंस. ये 5 एस्पेक्ट हैं पूरे इस चैप्टर के. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया था. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना हमने डिस्कस किया था. उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, ये उसमें क्या हमारा फोकस होता है. तो कस्टमर इनसाइट हम लेते हैं, हम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए. देन उसके बाद हम उसको असेस कैसे करते हैं. हम जो असेस करते हैं बेसिकली हम इंफॉर्मेशन नीड्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. अब देन हमें उन इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है. देन अब डेवलप करना है उनको हमने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को. that can be done through marketing intelligence and marketing research. So we ended over here in the first lecture. Now we are going to discuss marketing research, जो ending point था हमारा last lecture का. So actually we are going to have the third objective of this chapter, or you can say the third section of this chapter, that is marketing research. You can see over here there are 6 points, sub points mentioned over there. Defining the problem and research objectives, then developing research plan, gathering secondary data, primary data collection, implementing research plan, and interpreting and reporting the findings. So we are going to discuss all these aspects followed by the remaining aspects. Okay, so first of all, what we would do, we have to understand marketing research hai kya. I will take less time than the usual lectures because you are already going through a subject of business research. So there's like almost the same concepts are being discussed over here. There's no huge or big difference. So मैं समरी में या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ चलूंगा rather than जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट रिसर्च कर दूं. तो मार्केटिंग रिसर्च इज बेसिकली सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रेलेवेंट टू स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली यहाँ फोकस हमारा मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर रिसर्च करना, उनको कलेक्ट करना, उनको इवेल्युएट करना, उसके बेस पर डिसीजन करना, ये हमारा मार्केटिंग रिसर्च है. So first of all, we actually define
the problem and research objective, it's a 4-step process. Then we develop research plan, then we implement that research plan, and ultimately based off that plan जो हमें results या मिलते हैं, data मिलता है, हम उसको interpret करते हैं और उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि हमने क्या करना है, एक्टिविटीज करनी है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। प्रॉब्लम जो है, वी हैव टू क्लैरिफाई कि हम क्या कंडक्ट करना चाह रहे हैं। रिसर्च इन बिजनेस रिसर्च यू वुड स्टडी कि हम किस तरह प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं या रिफाइन कर सकते हैं, हम ब्रॉड प्रॉब्लम से नैरो प्रॉब्लम की तरफ किस तरह जाते हैं। तो देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप बुक जो रिसर्च की बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें यू वुड बी फेमिलियर विद दैट प्रोसेस, so we are not going to discuss that process over here because you are already going through in the second subject, but remember that we are assuming that you know that process. After that, when problem is defined, we settle the objectives. There are 3 forms of objectives. Again, you would find these objective in your book, but हम यहाँ पे उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं और काजल होते हैं। एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब हमें प्रॉब्लम अननोन हो और हम ये ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि हम प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, उसको डिफाइन करना चाहते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव। But when problem is we know a bit about the problem, then we describe that problem. ठीक है, और वी कैन से कि एक्सप्लोरेटरी के साथ ही हमारा जो सेकंड स्टेप चलता है वो उसका डिस्क्रिप्शन होता है। बट इट इज इन द करंट सिनेरियो, इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, लाइक पोटेंशियल्स ऑफ द मार्केट, मार्केट के डेमोग्राफिक्स, उनके एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर्स। ये हम जब करेंगे तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव होगा। लाइक अगर हम कहें कि हमारा क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्टिव है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, ये हमारा अब हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, एक्सप्लोरेटरी है। हम कहेंगे सपोज कौन खरीदेगा अगर हमारी प्रोडक्ट है, तो वो कौन जो है दैट इज डिस्क्रिप्शन। किस एज के लोग होंगे, किस इनकम के लोग होंगे, किस एटीट्यूड के लोग होंगे, कौन सा पोटेंशियल एरिया होगा जहां पे हमारी प्रोडक्ट बिक सकती है, दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। एंड आफ्टर दैट काजल ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू टेस्ट द काज एंड इफेक्ट। लाइक हम क्या ऐसे फैक्टर्स रखें जिसकी वजह से हमारी चीज बिकेगी। यहाँ पे चीज का बिकना डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे, ये उसके काज हैं। तो काज एंड इफेक्ट ये हमारे काजल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मीन सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसके बाद प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी तो उसके ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। अब प्रॉब्लम अगर आपकी डिफाइन नहीं हुई तो यू आर गोइंग विद एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव्स या डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। व्हेन प्रॉब्लम इज नोन वी विल मूव विद द काजल ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट डेवलपिंग रिसर्च प्लान है। अब हमें ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया हो गया जो हमने अचीव करने हैं। अब जो प्लान है ये मैं बताता है हाउ दोज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी अचीव्ड। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको इट मे कवर बट नॉट लिमिटेड टू लिखा हुआ है। रिसर्च अप्रोचेज हैं, कॉन्टेक्ट मेथड्स हैं, सैम्पलिंग प्लान्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है एंड एनालिटिकल टेक्निक्स हैं हमारी। लाइक रिसर्च अप्रोचेज हैं, इसमें क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव अप्रोचेज आर देयर। लाइक वी कैन अप्रोच आवर लाइक कस्टमर्स जिनसे हमने वो डेटा कलेक्ट करना है, जिनके बारे में हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए और अचीव करने हैं, तो हम उनको ऑब्जर्वेशनल अप्रोच कर सकते हैं। लाइक ऑब्जर्वेशन कुड बी विद नेकेड आई, ह्यूमन आई, इट कुड बी थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन पुट अ कैमरा ओवर देयर। आप सेंसर्स लगा सकते हैं, उनकी मदद से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप कोई जो है वो ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर सकते हैं, उनकी मदद से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल टूल्स हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च है, आप किसी एथनोग्राफिक स्टडी करें। ठीक है, कि हम जाएं, हम जो है वो लोगों को स्टडी करें कि हाउ दे आर डूइंग, ठीक है, हाउ दे आर बाइंग द प्रोडक्ट्स, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारी एथनोग्राफिक्स होंगी। अब एथनोग्राफिक्स जो हैं इसके अंदर और भी हमारी लाइक चीज़ें आ सकती हैं कि ये भी एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। इसमें ट्रेंड ऑब्जर्वर्स हम भेजेंगे, ठीक है, तो और कंज्यूमर से वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इसमें हम बिल्कुल इस तरह जाते हैं कि वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, तो हम वहाँ पे एक स्पेसिफिक एथनोग्राफी जो है ये किसी खास एथनिक ग्रुप के लिए खास तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि कोई खास ग्रुप ऑफ कस्टमर है कि वो किस तरह बाय करते हैं, वो किस तरह बाय नहीं करते हैं। अगर वो अवॉइड कर रहे हैं तो वाई दे आर अवॉइडिंग आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया उस एथनिक ग्रुप के बारे में जरूर होता है या उस कस्टमर बंच के बारे में जरूर होता है कि हाउ एंड वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट, बट वी वांट टू एक्सप्लोर इट फर्दर। हमें इतना ज्यादा इल्म नहीं होता कि हम डिसीजन कर सकें, हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। देन सर्वे रिसर्च है, लाइक वी कैन हैव क्वेश्चनियर सर्वे और वी कैन हैव इंटरव्यू सर्वे। हम जाएं अगेन फील्ड में जाएं और रिस्पॉन्डेंट से, जो कस्टमर्स हैं, उनसे नेचुरल इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन लें। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भी हो सकती है। जिस तरह आप फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप लैब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के बहुत मशहूर एग्जांपल्स मौजूद हैं, कोक और पेप्सी के ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। अगर आप यूट्यूब करें ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी
जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की गई फील्ड के अंदर के लोग जो हैं वो कोक और पेप्सी के बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अदरवाइज दीज एक्सपेरिमेंट्स कुड आल्सो बी कैरीड आउट इन लैब्स। जब वो आप लैब्स में करेंगे तो दैट वुड बिकम एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो ये रिसर्च अप्रोचेज हैं हमें जो अवेलेबल हैं। अब जब इन रिसर्च अप्रोचेज में हम किस तरह उनको कांटेक्ट करेंगे, जिस तरह ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व कुड बी डन विद द नेकेड आई, नेकेड आई से करना है तो इसका मतलब ये कि रिसर्चर वहां मौजूद होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। या आप हो सकता है कैमरास लगा दें, तो इट मीन्स यू आर यूजिंग गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एथनोग्राफी आपने करनी है, तो अब एथनोग्राफी अगर आपने फील्ड में जाके करना है तो फील्ड में लोगों को ऑब्जर्व करना है, या लोगों से इंटरव्यूज लेने हैं, या लोगों से क्वेश्चन फिल करवानी है। यूजुअली ये इंटरव्यूज के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इंटरव्यू है, ये फिजिकल इंटरव्यू है आपका। अब देखिए ना कॉन्टेक्ट मेथड्स में मेल, टेलीफोन एंड पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यूइंग होगी, ठीक है। या हम एथनोग्राफी के लिए फोकस ग्रुप भी कर सकते हैं कि फोकस ग्रुप हम कर लें। फिर सर्वे है हमारा। अब सर्वे जो है इट कुड बी मेल्ड सर्वे, इट कुड बी फिजिकल सर्वे, इट कुड बी टेलीफोनिक सर्वे, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो है वो फिजिकल ही होगी हमारी। अब ये जो चीजें हैं कि हमारे पास कांटेक्ट मेथड्स मौजूद हैं कि हम किस तरह जो कस्टमर है उसे कांटेक्ट करेंगे, मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, पर्सनल इंटरव्यूइंग करेंगे, फोकस ग्रुप करेंगे। फोकस ग्रुप में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर वो फोकस या डिस्कस करते हैं, और जो उनकी डिस्कशंस होती हैं उसका हम कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। वी शेयर दैट कंक्लूजन विद दोज एक्सपर्ट्स एंड आस्क देम वेदर इट इज द फेच अवे और यू कैन से द टेक अवे ऑफ दैट डिस्कशन। अगर वो उस पर एग्री करते हैं तो हम उस कंक्लूजन पे ड्रा हो गए, कंक्लूजन हमने ड्रा कर लिया जो फोकस ग्रुप के आउटकम के तौर पे निकला। देन ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च इंजन है हमारे पास, हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन बिहेवियरल एंड सोशल ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग। सोशल ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग ये है कि हम ये ट्रैक करें, जिस तरह गूगल मैप्स के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप कौन से स्टोर्स में ज्यादा जाते हो, कौन से रैक्स पे जाके ज्यादा टाइम गुजारते हो आप, ठीक है। आपके इवन जो है जब आप चीज परचेज करके जाते हो तो आप स्टोर से बाहर निकलते हो तो स्कैनर्स वहां लगाए जाते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या चीजें खरीदते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट क्या है, ठीक है, आप कौन से कस्टमर हो, ठीक, ये सारी चीजें। देन सोशल टारगेटिंग है आपको कि लाइक आप विजिट्स करते हो ब्रांड्स की वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया पे पेजेस विजिट करते हो, तो ऑब्जर्व किया जाता है कि अच्छा आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप शू के ब्रांड्स को विजिट कर रहे हो, या आप जो है वो क्लोथ्स के ब्रांड्स को विजिट कर रहे हो, या आप किसको विजिट कर रहे हो। तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और वही चीज आपको जो है वो फिर मार्केट की जाती है। आप लोगों ने ये चीज कभी नोटिस किया हो कि यूट्यूब पे आप म्यूजिक सुने तो आपको म्यूजिक की ही साइट्स नेक्स्ट टाइम ओपन होंगी, आप मूवीज देखें तो नेक्स्ट टाइम वही मूवीज होंगी, आप पंजाबी मूवी देखेंगे तो पंजाबी मूवीज ओपन होना शुरू हो जाएंगी। अब ये क्या है, ये सोशल ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग है। दे आर एक्चुअली identifying that which activities you are performing on your internet tools and social media and even physical activities। तो वही चीजें आपको मार्केट की जाएंगी। देन सैम्पलिंग प्लान्स हैं, हमने जो कस्टमर्स, अब सारे कस्टमर्स को फॉलो करना या उन तक पहुंचना तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता ना, तो हम पूरे कस्टमर्स में से एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो सेगमेंट हम सेलेक्ट करते हैं जिसपे हमने स्टडी करनी है वो सैंपल कहलाता है। अब वो सैंपल कैसे सेलेक्ट होना है, इट कुड बी इधर प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी में होता है एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन इक्वल चांस, नॉन प्रोबेबिलिटी में एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एज अ सैंपल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। अब इसकी भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, वो अगेन आप रिसर्च में पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन देम ओवर हियर। अच्छा, जब आपने सपोज रिस्पोंडेंट का सैंपल सेलेक्ट कर लिया है, अब उससे इंस्ट्रूमेंटेशन है, डेटा कलेक्शन मेजरमेंट है, हम क्वेश्चनियर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकती है, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर लाइक यू कैन हैव न्यूरो मार्केटिंग, ठीक है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, गैजेट्स अवेलेबल हैं जिनको जिनको आप यूज कर सकते हो, और उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरह आप बात करें ना न्यूरो मार्केटिंग की या न्यूरल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, तो न्यूरो मार्केटिंग के अंदर हम सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उनको वो नोटिस करते हैं कि आपका किस तरह जा रहा है। जिस तरह ऐसे ग्लासेस मौजूद हैं जिनको यूज किया जाएगा, आपको आप वो पहन लें और आप शॉपिंग करें तो आपकी रेटिना की मूवमेंट जो है वो नोट की जाएगी कि आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, कौन से प्रोडक्ट है उस पर फोकस करते हो, कौन सी पैकिंग पे फोकस करते हो, लाइक कौन सा रेड कलर है, आपने रेड कलर की पैकिंग ज्यादा देखी है, ज्यादा टाइम उसको देखने पे गुजारा है, या ग्रीन कलर की पैकिंग पे, तो आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर को पैकिंग कौन सी पसंद। सिमिलरली आप जो है वो अगर सपोज एक प्रोडक्ट उठाते हो तो आप उसकी एक्सपायरी डेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, या आप उसकी प्राइस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, या आप उसके इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो पता चल जाएगा कि व्हाट शुड बी प्लेस्ड एट द पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। इस तरह बायोमेट्रिक मेजर्स हैं,
लाइक ये भी मेजर्स यूज हो सकते हैं कि आपका हार्ट रेट, आपकी एस्पिरेशन रेट, आपका स्वेट लेवल, ठीक है, या आपकी फेशियल एंड आई मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताई है, ये जो है ये रिकॉर्ड की जाए। अब ये जो सारे टूल्स हैं बायोमेट्रिक या न्यूरो मार्केटिंग के टूल्स जो हैं, इनकी मदद से भी डिसाइड हो सकता है कि आप जो है वो किस तरह जो है बाइंग पैटर्न है आपके। एंड कंपनीज मे डिसाइड देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और देयर पैकेजिंग स्ट्रेटजीज या प्रोडक्ट एंड सर्विस की प्रोविजन स्ट्रेटजीज या अपनी प्रमोशन स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग मिक्स है पूरा, वो उसके मुताबिक प्लान कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियल टाइम फैक्ट्स। आप इसको पढ़े, बुक से पढ़िएगा, अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी जो है वो एग्जांपल्स भी गिवन है उसके अंदर। तो दीज आर द टूल्स through which we can actually collect data from the selected sample. When data would be collected, we will analyze the data and we will come up with the conclusion कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो वी कैन हैव टू फॉर्म्स ऑफ डेटा जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। वन इज सेकेंडरी डेटा एंड सेकंड वन इज द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी वो डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो पब्लिश फॉर्म में होता है, तो ये नॉन पब्लिश फॉर्म में होता है और उसको रिसर्चर यूज कर रहा होता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। जिस तरह ऑनलाइन डेटाबेसेस मौजूद हैं, इंटरनेट सर्च मौजूद है, तो आप उस डेटा को यूज करें, वो तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है ना, लोग जानते हैं। या जिस तरह थीसिस पढ़े होते हैं, ये भी सेकेंडरी डेटा है हमारे लिए, वो नॉन पब्लिश्ड होता है, इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेसिफिक पर्पज के लिए एट हैंड कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो ये दो डेटा की फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब जब हम इसका कंक्लूजन भी ड्रा कर लेंगे, तो हम जो है उस रिसर्च प्लान को, लाइक हमने ये प्लान, ये हमने बनाया ना, प्लान बनाया कि हमने कैसे करना है, अब इस प्लान को हमने एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब द सेम प्लान could be implemented by the people of marketing department और द इंटरनल एम्प्लॉइज ऑफ सम अदर डिपार्टमेंट, जिनके पास रिसर्च कंडक्ट करने की एक्सपर्टीज हो या फील्ड वर्क की एक्सपर्टीज हो, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। लाइक ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं जो आपको मार्केटिंग डेटा कलेक्ट करके दे सकती हैं, आपको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। दोज आर वेरी फ्यू, बट वो अब इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें, अब उस तरफ आ रही हैं कि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में भी इम्प्रूव हो रही है। आफ्टर दैट, चाहे हम इंटरनल सोर्स को यूज़ करें चाहे एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करें, मार्केटिंग का जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, whatsoever result we fetch, we have to interpret them and we have to draw a conclusion about that। ठीक है, कि हमें पता चलेगा उनमें कौन सी चीजें फेवरेबल हैं, कौन सी अनफेवरेबल हैं, कस्टमर्स को क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, हम किस लेवल पे हैं उनको नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने पे। वी में ये सेटल आवर डायरेक्शन जो फ्यूचर में हमें करना है, बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ड्रॉन थ्रू मार्केट, ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। अच्छा, अब जो हमने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को हमने जब कलेक्ट किया मार्केटिंग रिसर्च को के थ्रू, और उसका कंक्लूजन ड्रा किया, तो उसको हम इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर द पर्पसेस। लाइक नंबर वन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब customer relationship management is used to manage detailed information about individual customers and carefully manage customer touch points. Yes, these are the sensitive points जो customer के लिए अहम है। Like मैंने आपको बताया ना, न्यूरो मार्केटिंग एंड जो हमने बाकी मार्केटिंग की फॉर्म डिस्कस किया है, उसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि लाइक हम देखते हैं कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी आईज कहाँ पे ज्यादा फोकस रही हैं, कहाँ उसकी हार्ट बीट कैसी थी, ठीक है, कहाँ जो है वो उसका जो है ब्लड का प्रेशर कैसा था। किसी लाइक एक प्रोडक्ट को देख के आपका जो है वो खुशी होती है ना, एक प्रोडक्ट आपकी चॉइस की है, सपोज प्रमोशन लगी हुई है, तो आपको वो चीज पसंद भी पड़ी है, तो फौरन आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। अब अगर आपके ऊपर हमने गैजेट्स लगाए हुए, तो हमें पता चल गया कि आप प्रमोशन से और इस प्रोडक्ट दोनों चीजें से इंस्पायर हुए हैं। तो अब ये वो टच पॉइंट है दो आपके, कि एक वो प्रोडक्ट आपको पसंद है, दूसरा आपके लिए वो सेल पे लगी हुई है, तो यू विल परचेज इट। अब ये टच पॉइंट है। सिमिलरली आपको पैकिंग पसंद है, आपके फेवरेट कलर की पैकिंग पड़ी हुई है, यू विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, तो दैट इज अ टच पॉइंट। तो हमें टच पॉइंट्स का आइडिया होता है एंड वी हैव टू डील ऑन दोस टच पॉइंट्स टू ईच कस्टमर। देन बिग डेटा एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स है। हम उन्हीं चीज़ों को लाइक मार्केटिंग एनालिटिक्स, अब बिग डेटा तो हम पढ़ चुके हैं कि डेटा जो लाइक सोशल मीडिया और इंटरनेट बेस्ड जो डेटा है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 6 मिलियन के करीब जो है इंफॉर्मेशन जो है पर डे जनरेट होती हैं लोगों के बारे में। अब उसको अगर हम ईयर्स पे डिवाइड करें तो वो तो बिलियंस में बनती है, तो अब वो बिग डेटा है। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स बेसिकली इज अ टूल और द टूल्स, एक से ज्यादा टूल्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच मार्केटर्स डिग आउट मीनिंगफुल पैटर्न्स इन बिग डेटा टू गेन कस्टमर्स इंसाइट्स एंड गेज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। कि कस्टमर के डेटा को जब वो जिन टेक्निक्स और प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस या टूल्स के थ्रू एनालाइज करते हैं, दोज आर मार्केटिंग एनालिटिक्स। ठीक है, और उसके थ्रू उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके हम डीप डिग डाउन करके जो इनसाइट्स हमें मिलती हैं उनको यूज करते हैं, और उसकी बेस पे हम मार्केटिंग परफॉर्मेंस अपनी डिटरमिन करते हैं। यू हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स
given in your book, go through from that, that would be give you an additional insight कि बिग डेटा और मार्केटिंग एनालिटिक्स कैसे यूज होते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है. लाइक इसमें हम जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स दोनों के लिए यूज करते हैं. लाइक इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, वी मे लेट दोज इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट टू और गिव टू द अदर डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, R&D डिपार्टमेंट को. उनको बताएंगे भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कस्टमर्स क्या रिक्वायर कर रहे हैं. पैकेजिंग अगर हमारी हो रही है तो हम पैकेजिंग को बताएंगे. सपोज हमने पैकेजिंग आउटसोर्स की हुई है तो वी विल शेयर द सेम इंफॉर्मेशन टू द कंपनी दैट इज प्रोवाइडिंग अस द पैकेजिंग. इसी तरह हमारे सप्लायर्स हैं, वो हमारे सप्लायर्स का एक फॉर्म होगा. हमने हमारी प्रोडक्ट की लाइक क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है तो वी मे इंक्वायर आवर सप्लायर्स कि व्हाट एल्स दे कैन प्रोवाइड अस इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर क्वालिटी. अब ये भी हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं तो उनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी विल यूज दीज इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. ठीक है, अल्टीमेट पर्पस वही होगा कस्टमर की नीड्स वांट्स को फुलफिल करना और उसकी वैल्यू के लिए वैल्यू जनरेट करना. अच्छा, अब कुछ और कंसिडरेशंस हैं हमारी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की. लाइक मार्केटिंग इज रिसर्च फॉर स्मॉल फर्म्स हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो छोटी फर्म्स हैं उनके लिए भी इसके वैल्यू बढ़ती जा रही है बिकॉज नाउ स्मॉल फर्म्स आर गोइंग टू कम्पीट द लार्ज फर्म्स. मल्टीनेशनल से कंपटीशन होता है. आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, आपके एरिया में एक बहुत बड़ा स्टोर ओपन हो जाता है, ठीक है, और आपके एरिया में एक मार्केट भी है, तो दैट होल मार्केट वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट स्टोर. जिस तरह मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाहौर में एम्पोरियम मॉल ओपन हुआ है. तो एम्पोरियम मॉल जोहर टाउन में ओपन हुआ और उसके करीब काफी सारी मार्केट्स हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं जो उसके करीब हैं. एंड द सेल्स ऑफ दोज मार्केट्स हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ एम्पोरियम मॉल. बिकॉज लोग प्रेफर करते हैं कि यार मॉल में जाते हैं, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, खाना भी वहीं हो जाएगा, माहौल भी अच्छा है, प्रमोशंस भी लगी होती हैं, तो वहां से हम परचेज कर लेते हैं और वहां एक जगह पे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं आपको, इधर उधर कम फिरना पड़ता है. अब ये क्या है, ये स्मॉल फर्म्स के लिए. तो नाउ दे हैव टू आइडेंटिफाई कि कस्टमर्स उधर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, व्हाट कुड बी डन कि कस्टमर्स वहां ना जाएं और हमारे कस्टमर्स रिटेन हो. ठीक है, तो अब ये जो है ये मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू होगा. देन मार्केटिंग रिसर्च फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एनपीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल हैं और इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. लाइक फिलैंथ्रोपिक्स में आप ईदी फाउंडेशन ले लें, आप शौकत खानम हॉस्पिटल ले लें. नाउ दे हैव टू कंडक्ट देयर मार्केटिंग रिसर्च. बाकायदा तौर पे इनके अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह शौकत खानम का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. दे आइडेंटिफाई देयर कस्टमर्स. अब इनमें दो तरह के वो कस्टमर्स लेते हैं, एक वो कस्टमर जो उनको फंड्स दे सकते हैं, एक वो कस्टमर्स जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है. तो अब वो फंडिंग वाले कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको ढूंढते हैं कि हाँ हाउ कैन वी जनरेट फंड्स. तो वो सोर्सेज ऑफ फंड्स, अब लोगों की उसमें प्रेफरेंसेस देखनी है कस्टमर्स की, यानी जो हमें फंडिंग देंगे, जो डोनर्स होंगे हमारे. अब डोनर्स कहाँ मिलेंगे, डोनर्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, डोनर्स क्या प्रेफर करते हैं. तो वी हैव टू डील देम एट दैट लेवल कि वो हमें डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाए. ठीक है, अब उनको कैसे तैयार करना है, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग. तो वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दोज डोनर्स एंड फिर उसके बेस पे हमें उनको ट्रीट करना है. देन मार्केटिंग रिसर्च फॉर इंटरनेशनल वेंचर्स. इंटरनेशनल वेंचर्स के लिए मार्केटिंग डिफरेंट है. लाइक जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होते हैं तो यू हैव टू सी द कस्टमर्स, द कल्चर ऑफ दैट कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके मुताबिक आपने मार्केटिंग जो है वो डिटरमिन करनी है. तो लाइक आप देखें, आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया में प्रेफरेंसेस और तरह की हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं वहाँ प्रेफरेंसेस और तरह के, दो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, दो डिफरेंट डोमिनेटिंग जो है वो कल्चर्स हैं. तो आपको उसके मुताबिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी. इंडिया में बनाएंगे तो आप एक खातून को साड़ी पहनाएंगे कमर्शियल ऐड के लिए, अगर आप सऊदी अरेबिया में बनाएंगे तो स्कार्फ से कम आप ड्रेस पे नहीं जा सकते. बट नाउ द वैल्यूज आर चेंजिंग इवन ओवर देयर. तो अब वहां भी आपने अपनी मार्केटिंग को चेंज करना. अगर पहले आप अबाया वाली खातून दिखाते थे, नाउ यू कैन नॉट, यू मे शो दैट, बट आप चेंज भी कर सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता वहां भी कल्चरल चेंजेस आ रही हैं. तो दीज आर द कल्चरल शिफ्ट जो कंट्रीज के अंदर आती हैं. और रिमेंबर कल्चर डोमिनेट्स लाइक मोर देन द रिलीजन इवन. ठीक है, ये तो पूरी दुनिया की फाइंडिंग भी है, गिराट हॉफस्टीट की फाइंडिंग्स हैं बकायदा कि रिलीजन से ज्यादा कल्चर स्ट्रांग होती हैं. ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली इंटरनेशनल वेंचर्स के अंदर आपने उनके कल्चर्स का ख्याल रखना है, उनकी प्रेफरेंसेस का, उनकी वैल्यूज का, वहाँ क्या प्रेफर होता है, क्या प्रेफर नहीं होता. बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं जब वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होते हैं तो बिल्कुल लोकली डिमांड्स, लोकली रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं. पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है. तो क्यों फ्लोरिश हो रहा है, पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जो 2021 जून में खत्म हो रही है, तो उससे पहले पहले ब्रांड्स एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं.
लोगों ने 5 साल तक जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। अब ये पाकिस्तान की मार्केट के डायनेमिक्स से, तो मार्केट के डायनेमिक्स को देख के फिर पाकिस्तान में जो है गाड़ियां बहुत महंगी थी, 19-20 लाख 21-20 लाख के करीब थी जो हैशबैक थी, अब सिडेन आ रही हैं जो 20 लाख की होंगी पाकिस्तान में। तो अब ये चीज क्या है, ये भी मार्केटिंग रिसर्च, उन्होंने देखा गाड़ी लॉन्च करनी है, छोटी करें, सस्ती करें, कस्टमर विल प्रेफर दैट। ठीक है, अब ये अगेन इंटरनेशनल वेंचर्स हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स और मार्केट है, और उसकी बेस पे वो अपनी चीजें लॉन्च कर रहे हैं। देन एथिक्स के इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारा। लाइक कस्टमर प्राइवेसी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आप लोगों ने नोटिस किया हो, आप एक शॉप के ऊपर जाके कभी अपना, वो अक्सर कहते हैं अपना ईमेल आईडी बता दें, या अक्सर आपसे कहते हैं अपना सेल फोन दे दें। आप एक जगह पे सेल फोन लिख के आते हैं अपडेट के लिए कि आपको अगर प्रमोशन लगे तो बता दें, तो आपको 20 ब्रांड्स की शुरू हो जाती हैं आनी। अब ये प्राइवेसी आपकी इन्फ्रिंज हो गई ना, इंट्रूव हो गई आपकी प्राइवेसी, कि आपका नंबर शेयर हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, ये एक प्राइवेसी का इशू है। देन जब आपको, मैंने आपको बताया था कि आपकी ट्रैकिंग होती है, ठीक है, तो जब और टारगेटिंग होती है, तो ट्रैकिंग और टारगेटिंग भी तो भाई आपकी प्राइवेसी है ना। यू हैव योर सोशल लाइफ, यू हैव योर फ्रेंड्स लाइफ, यू हैव मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अब वो सारे के सारे जो है वो आया हो रहे होते हैं, तो दैट इज वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टूल्स, और उनकी जो यूटिलाइजेशन है। एंड देन मिसयूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में कलेक्ट हुई है उसको मिसयूज किया जाए, तो मिसयूज की वजह से भी चैलेंजेस अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, और बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट के इश्यूज जो हैं वो रेज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, दिस चैप्टर इज ओवर। तो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड डिस्कशन ऑफ दिस होल चैप्टर इन द कमिंग क्लासेस इंशाल्लाह। तो स्टे ब्लेस्ड बच्चों, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।